Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in this session we will start another chapter of our second year chemistry from organic section, and it is about alkyl halides. It is basically chapter 8 of your book, and today we will study what alkyl halides are, their classification, and some of their preparation reactions and some of their chemical properties. First of all, what are alkyl halides? So basically we have already studied about alkyl halides, a little bit about alkyl halides, and we have seen alkyl halides in various reactions. So alkyl halides are basically the type of organic compounds in which hydrogen atom of an alkene is replaced by a halogen atom. बेसिकली अल्केन में से हाइड्रोजन आइटम अगर रिप्लेस हो जाए विद हैलोजन तो आप उसको अल्काइल हैलाइड्स या हैलोजन अल्केन्स जो है वो कॉल करते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल आर एंड कैपिटल एक्स. आर इज फॉर अल्काइल एंड एक्स इज फॉर हैलाइड्स. Some of the examples of alkyl halides are methyl chloride, methyl bromide, ethyl bromide, propyl bromide, etc. क्लासिफिकेशन. अच्छा, क्लासिफिकेशन के हवाले से जो है वो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर alkyl halides, classify them. So in that question you have to answer it like कि आपको alkyl halides डिफाइन करने होंगे और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो देनी होगी. So they are classified into primary alkyl halides or 1 degree alkyl halides, secondary alkyl halides or 2 degree alkyl halides, tertiary alkyl halides or 3 degree alkyl halides. So what is the difference between these three types of alkyl halides? So primary alkyl halides or 1 degree alkyl halides, the type of alkyl halide in which halogen atom is attached to primary carbon, that is carbon which is attached directly to the one carbon atom, is known as primary alkyl halide. So basically all those alkyl halides in which the halogen atom is attached to a carbon which is directly attached to only one carbon atom are known as primary alkyl halides or 1 degree alkyl halides. If you see here, इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं, एक तो आपके पास डायरेक्टली इसका बॉन्ड बना हुआ है इस ब्रोमीन के साथ, ठीक. एक इसका बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली. सो 2 बॉन्ड्स हो गए. अब रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ. बेसिकली वो कार्बन विच इज अटैच्ड टू हेलोजन is directly bonded to only one carbon. सिर्फ एक कार्बन से इसका बॉन्ड है, तो ऐसे alkyl halides को हम प्राइमरी या 1 degree alkyl halides कॉल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए. दिस कार्बन atom which is directly attached to a halogen is directly bonded to only one single carbon atom. रिमेनिंग इसके बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम्स के साथ बने हुए हैं. और जो ये CH3 मिथाइल ग्रुप का कार्बन है, ये डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, ना के इस कार्बन के साथ. सो एक और एग्जांपल जिसमें हमारे पास कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली वन सिंगल कार्बन एटम. ओके, सो दीज आर नोन एज प्राइमरी alkyl halides or 1 degree alkyl halides. Secondary alkyl halides or tertiary or 2 degree alkyl halides are basically the type of alkyl halide in which halogen atom is attached to secondary carbon, that is carbon which is attached directly to 2 carbon atoms, is known as secondary alkyl halide. So in the case of secondary alkyl halide or 2 degree alkyl halide, the carbon atom which is directly attached to the halogen atom is directly bonded to 2 other carbon atoms. Examples. Now the carbon atom which is directly attached to halogen is bonded with 2 carbon atoms directly, ठीक. And the 4th valency or 4th bond of this carbon is satisfied with hydrogen atom. Again, the carbon atom which is directly bonded to the halogen is directly attached to 2 other carbon atoms.
and its fourth valency satisfied with hydrogen atom. So these type of alkyl halides in which carbon atom is directly attached to the halogen is bonded to two carbon atoms directly are called secondary alkyl halides. Or are tertiary alkyl halides or 3-degree alkyl halides. The type of alkyl halides in which halogen atom is attached to tertiary carbon, that is carbon which is attached directly to 3 carbon atoms, is known as tertiary alkyl halide. Example, अगर आप यहाँ देखें, the carbon atom which is directly bonded to the halogen is directly bonded to 3 other carbon atoms. ठीक है, so this is tertiary carbon, and if the fourth valency of carbon is satisfied with the halogen, then it is tertiary alkyl halide. In this example, the carbon atoms directly bonded to the halogen is directly bonded to 3 other carbon atoms directly. ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है. Okay, now the preparation of alkyl halides. How alkyl halides are prepared? From alcohol, you can prepare alkyl halide from alcohol. Alcohol here is ethyl alcohol C2H5OH, which is also known as ethanol. When ethyl alcohol reacts with HBr, hydrogen bromide, hydrobromic acid, then C2H5Br, ethyl bromide or bromoethane is formed and a water molecule is also formed during the reaction. अगर इस रिएक्शन को हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो only the OH bond of ethyl alcohol is replaced with Br of hydrogen bromide. So the bonds which are breaking here are this and this. Br, because it is partially negatively charged and this is partially positively charged, and in this case OH is partially negative and this carbon side is partially positive because oxygen is more electronegative as compared to carbon. So the negative charge, partial negative charge is on oxygen atom. So अब क्या हुआ, सिंपल पार्टनर्स will get exchange. इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास आ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चल जाएगा. तो आपके पास HNOH मिलके वाटर फॉर्म कर लेंगे, C2H5Br मिलके इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म कर लेंगे, विच इज एन अल्काइल हैलाइड. ओके, अनदर एग्जांपल. Another example in which the alcohol is propyl alcohol. 3 carbons means prop and OH means it's an alcohol. So propyl alcohol when reacts with thionyl chloride SOCl, then again the bond which will break is the carbon oxygen bond. This will break. And from thionyl chloride Cl, chlorine will come to this carbon. ये इस कार्बन के पास आ जाएगा तो आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा. अब यहाँ से OH आपके पास रिमूव हो रहा है, यहाँ से SO. सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये Cl2 है तो एक क्लोरीन इसमें से जो है वो रिमूव होगा. एक क्लोरीन जो बच गया वो आपके पास हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl फॉर्म कर लेगा, और जो SO सल्फर एंड ऑक्सीजन यहाँ है and एक जो ऑक्सीजन ये वाला है ये मिलकर आपस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर लेंगे. सो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड आपका प्रिपेयर होता है. अनदर एग्जांपल. यहाँ पर आपके पास जो अल्कोहल यूज़ हो रहा है वो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल है. ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग करें, सो नंबरिंग हम किस लिहाज से कर सकते हैं, 1
2 and 3 लीनियर हमने नंबरिंग कर दी। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो सेकंड पर OH है और सेकंड पर ही CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इट्स 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन और E रिप्लेस कर दिया हमने 2 ओल के साथ। ओल इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप। सो जब हम 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल का रिएक्शन OHCl के साथ करवाएंगे तो Cl यहाँ से रिमूव होगा, दिस बॉन्ड विल आल्सो ब्रेक, सो ये OH and this H will react together and will form water and Cl will go to this carbon. Okay, so इस तरीके से आपके पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। 2 क्लोरो अगेन 1 2 3 इस तरीके से कार्बन है। तो 2 पर आपके पास क्लोरो है, 2 पर ही आपके पास मिथाइल है और 3 कार्बन है टोटल आपके पास। जो नंबर्स आपने दिए हैं तो इसके लिए हमने प्रोपेन यहाँ यूज किया है। From alkanes you can also prepare alkyl halides from alkanes. Alkane, which is methane here, when reacts with chlorine, it forms methyl chloride, CH3Cl and HCl. Simply, one hydrogen of methane will get replaced with chlorine atom. So it's basically a substitution reaction. So Cl and Cl. We have already studied this substitution during the reaction when we were studying substitution reactions or chemical properties of ethane. एंड बेसिकली ये मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक रिएक्शन है जहाँ हमने पूरी सब्स्टिट्यूशन स्टेप वाइज करवाई थी। ओके, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक। So one H and one Cl will react together and this Cl will react with this carbon atom to give CH3Cl and HCl obviously. From alkenes, you can also prepare alkyl halides from alkenes. Alkenes are basically the hydrocarbons having double bond. Okay, so this is 1 2 3, so 3 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बिटवीन है आपका डबल बॉन्ड। सो वी यूज द लीस्ट नंबर टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और अनसैचुरेशन। सो इट इज 1 प्रोपीन एंड व्हेन 1 प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन व्हाट हैपेंस, इट्स बेसिकली एन एडिशन रिएक्शन। pi bond is present here, CH3 और रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ। सो सिंपल यहाँ क्या होगा, दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक एंड अ pi बॉन्ड विल ब्रेक। सो जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ जो है वो आपके पास वैलेंसी, अब कार्बन एटम C जो है वो अनसेटिस्फाइड होगी। तो एक बॉन्ड इसका फ्री होगा और एक बॉन्ड इसका फ्री होगा, एक पर हाइड्रोजन आ जाएगा और एक पर जो है वो Cl आ जाएगा। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, फ्रॉम एल्कीन्स हमने देख लिया है। ओके, नेक्स्ट इज Grignard region. Basically now we will study some chemical properties of alkyl halides. So Grignard region को हमने already study किया हुआ है। It's an organometallic compound. Organometallic compounds are those compounds in which there is a metal bonded to organic species or organic part or organic moiety. So Grignard reagents are prepared by reaction of organic halides with
magnesium metal. Basically, when alkyl halide reacts with magnesium metal, Grignard reagents are formed. We have already studied the production or synthesis of Grignard reagents. Or basically, they are RMgX, alkyl magnesium halides. During the preparation of Grignard reagent, diethyl ether is used. So, what is the purpose of using diethyl ether here? So, ये आपसे reasoning question है पूछते हैं कि why ethyl ether is used during the formation of Grignard reagent. So, the reason is the diethyl ether is an especially good solvent for the formation of Grignard reagents. Basically, जब हम reactions करवाते हैं तो mostly हमें जो है कोई solvent चाहिए होता है जिसमें हमको reactions को carry करना है. So, the solvent here is ether. There are two reasons for selecting ether or diethyl ether as a solvent during the formation of Grignard reagent. So number one, the first reason is the Grignard carbon is highly basic and reacts with the acidic proton of polar solvents like water. जो Grignard reagent में जो कार्बन है वो हाईली बेसिक होता है, तो अगर आपके पास वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होगा तो वाटर में मौजूद हाइड्रोजन एटम से ये रिएक्शन कर लेगा, सेकेंड रीजन और अल्केन फॉर्म कर लेगा. सेकेंड आपके पास जो रीजन है वो क्या है, ईथर has no acidic protons, so Grignard reagents are stable in ether. There are no acidic protons in ether, so Grignard reagents are stable in ether solvent. ये preparation equation है Rx alkyl halide when reacts with magnesium metal in the presence of diethyl ether, RMgX Grignard reagent is formed. Grignard reagent में instead of aliphatic hydrocarbon we can use aromatic hydrocarbon like benzene, तो भी आपके पास Grignard reagent बनेगा aromatic Grignard reagent. So for example CH3I alkyl halide methyl iodide when reacts with magnesium in the presence of diethyl ether, methyl magnesium iodide is formed, and when phenyl bromide or benzyl bromide reacts, basically benzene ring है, या bromobenzene reacts with magnesium, then it forms phenyl magnesium bromide. Reactions of Grignard reagents. Okay, Grignard reagent के reactions are very important because इनसे बहुत सारे useful products जो है वो बनाए जाते हैं और examination point of view से भी these are important. Almost every year इसमें से जो है वो question बनता है. So Grignard reagent basically itself alkyl halide तो नहीं है, but it is formed with alkyl halide. So हम इसको यहाँ study कर रहे हैं इसके reactions को इसलिए. Okay, from reaction of Grignard reagent with water or hydrolysis of Grignard reagent. Basically, we are preparing alkanes from Grignard reagent here. So initially कुछ reactions हम ऐसे ही लिखेंगे जहाँ आपके पास जो है वो Grignard reagent को यूज़ करते हुए different reactants के साथ या reagents के साथ जब हम उसको reaction करवाएंगे तो आपके पास alkane जो है वो product मिलेगी. So from reaction of Grignard reagent with water or simply hydrolysis. Hydro is for water, lysis means to break. तो आप hydrolysis करवाकर Grignard reagent की अल्केन जो है वो हासिल कर सकते हैं. कैसे, जनरल रिएक्शन देखते हैं. दिस इज बेसिकली RMgX Grignard reagent, alkyl magnesium halide when it reacts with water. So अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि Grignard reagent में this side is the reaction side. ये RMg bond जो है ये वो polar है और ये जो है वो reaction side होता है during the reactions. So during the reaction this R and Mg bond breaks. Mg is metal, so it got positive charge while carbon gets partial negative charge. Okay, so during reaction this bond will break. OH and H hydroxyl, OH group is negative and H is positive. So जब ये bond break होगा यहाँ से आपके पास नेगेटिवली चार्ज R रिमूव होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज H के साथ रिएक्ट करके RH फॉर्म करेगा विच इज़ एन अल्केन. और ये जो OH है नेगेटिवली चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज Mg के पास आकर इस तरह से एक आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. अब इसका स्पेसिफिक हम रिएक्शन देखते हैं विद स्पेसिफिक अल्काइल हैलाइड.
So here the alkyl halide which is used is methyl magnesium iodide, when it is hydrolyzed तो H पॉजिटिव है और CH3 नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन करके CH4 में कन्वर्ट हो जाएंगे और OH एज यूजुअल आपके Mg के पास आकर इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. So you can prepare methane by using Grignard reagent. Next reaction is reaction of Grignard reagent with alcohol. Whenever Grignard reagent uses alcohol, an alkane is obtained. So here is the general reaction. So here in alcohols are basically represented as ROH, and the hydrogen which is attached to oxygen here is partial positive. So this partial positive hydrogen will react with partial negative alkyl group of Grignard reagent and will form alkane. And rest of the OR moiety, we can represent this R with R dash or R prime. So this will go to this magnesium. So इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं इसका. यहाँ पर हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया है वो है हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, C2H5 इथाइल मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम मीथानॉल से CH3OH. सो ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और C2H5H के साथ कंबाइन होकर C2H6 इथेन फॉर्म कर लेगा और CH3O जो है वो उस मैग्नीशियम के पास आ जाएगा इस तरह. तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो इसलिए हमने ऑक्सीजन की साइड से मैग्नीशियम को बॉन्डिंग दिखाई है. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अमोनिया. यहाँ भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अल्केन है. सो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये NH3 अमोनिया को ओपन करके लिखा है. इसके एक हाइड्रोजन पॉजिटिव को हम जो है वो यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं R के साथ. तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R एंड H मिलके अल्केन फॉर्म कर लेंगे. NH2 जो है वो मैग्नीशियम के पास आके इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा. स्पेसिफिक इसका रिएक्शन हम देखते हैं. MgCH2Br, CH2 and CH3. बेसिकली दिस इज प्रोपाइल ग्रुप. C3 कार्बन का हम प्रोपाइल यूज करेंगे. प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया तो ये H और NH2 बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मैग्नीशियम और कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये CH2 और H बॉन्ड बना के CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे. बस प्रोपेन बनेगा और NH2 जो है वो मैग्नीशियम के पास आकर इस तरह से अटैच हो जाएगा. Reaction of Grignard reagent with amine. Amines are basically ammonia in which hydrogen atom is replaced with an alkyl group, then they are termed as amines. So अगर एक हाइड्रोजन अमोनिया का रिप्लेस हो सिंगल एक अल्काइल ग्रुप से तो हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं. दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और रिप्लेस हो जाए अल्काइल ग्रुप से तो हम उसे सेकेंडरी अमाइन कहते हैं. इसी तरीके से अगर आपके पास तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद अल्काइल ग्रुप तो आपके पास टर्शरी अमाइंस जो है वो फॉर्म होते हैं. सो यहाँ आपके पास हमने प्राइमरी अमाइन को यूज़ किया बिकॉज सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है विद R ग्रुप्स. ठीक है. सो दिस साइड इज पार्शियल पॉजिटिव. सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा. R और R कंबाइन होके R अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास दो अल्काइल ग्रुप्स कंबाइन होके एक सिंगल अल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो जो प्रोडक्ट है इसमें जो अल्केन आपको मिल रहा है वो हाई अल्केन मिलेगा, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर होगा. फॉर सपोज RCH3 होता है एंड ये RbCH3 होता है. जब ये कंबाइन करते हैं तो C2H6 आपके पास मिलता है. तो एक हायर अल्केन आपको एज अ प्रोडक्ट जो है वो मिलता. और जो NH2 है वो यहाँ मैग्नीशियम के पास आकर इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा तो आपके पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है. स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं. अगेन हमने यहाँ जो
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है वो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एंड द अमाइन व्हिच वी हैव यूज्ड हियर इज मिथाइल अमाइन CH3NH2. So this bond will get break and this bond will get break. These two CH3 will combine to give ethane C2H6, and this NH2 moiety will go to this magnesium like this. रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से भी जब इसका रिएक्शन होगा तो आपके पास अल्केन की ही फॉर्मेशन होगी. अगेन द अल्केन विच विल ऑब्टेन हियर विल बी अ हायर अल्केन. सो ये आपका जनरल हमने फॉर्मूला लिखा है या स्ट्रक्चर बनाया है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. और X इज बेसिकली फॉर अल्काइल हैलाइड, R for alkyl, X for halide. This bond will get break, this bond will get break, these two R will combine together to give an alkane, and then this X negatively charged X will go to this magnesium and it will give MgX2. Okay. तो स्पेसिफिकली हम यहाँ जो रिएक्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 is for इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड दिस इज क्लोरो मीथेन CH3Cl. ये ब्रेक होगा, C2H5 और CH3 कंबाइन हो जाएंगे तो 3 कार्बन आ गए टुगेदर, तो ये आपके पास प्रोपेन है और ये Cl जो है वो इधर चला जाएगा तो ये मैग्नीशियम डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी. सो ये वो रिएक्शन है जिससे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आप अपना अल्केन को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. अब कुछ अदर रिएक्शन हमने देखना है इन विच प्रोडक्ट्स अदर देन अल्केन आर ऑब्टेन. बेसिकली हम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज़ करते हुए अल्कोहल्स में जो है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं. ऑल 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स, ऑल 3 types of alcohols can be prepared using Grignard reagent. So reaction of Grignard reagent with formaldehyde or methanol gives primary alcohol. Formaldehyde or methanol are two similar. It is a single thing having 2 names. ठीक है, ये दोनों जो है वो एक ही चीज़ है. जनरल रिएक्शन देखते हैं. फॉर्मल्डिहाइड यानी कि आपका इट्स एन एल्डिहाइड, कार्बोनाइल कार्बन के अगर राइट साइड पर हाइड्रोजन हो और लेफ्ट साइड पर अल्काइल ग्रुप हो तो ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है. बट अगर ये जो R है अल्काइल ये रिप्लेस हो जाए विद अ हाइड्रोजन तो हम इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं. ओके, कार्बोनाइल कार्बन में जो है वो आपके पास जो मोइटी पॉजिटिव है वो कार्बन है और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. सो ड्यूरिंग रिएक्शन दिस बॉन्ड ब्रेक्स. ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड होता है तो ड्यूरिंग रिएक्शन ये ब्रेक होगा. तो जो चीज़ हमारे पास बनती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और अब जो वैलेंसीज हैं ऑक्सीजन की भी एक वेकेंट हो गई और कार्बन की भी वैलेंसी वेकेंट हो गई. ठीक है, अगर आप कार्बन को इधर देखें तो कार्बन के बेसिकली इस कार्बन के रेड वाले अगर बॉन्ड्स देखें तो ये 3 बॉन्ड्स बने हुए, तो मैंने एक ब्लू वैकेंसी इसकी शो की है कि ये भी फुलफिल नहीं है. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, इसका 1 बॉन्ड बना हुआ रेड वाला, ब्लू वाला भी बनेगा. सो जब इसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो ये इस तरह से होता है कि आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑलवेज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा R और Mg बॉन्ड ब्रेक होता है यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम वाला. तो R जो है वो पार्शियल नेगेटिव है तो वो जो है वो इस कार्बन के साथ आकर बॉन्डिंग करता है इस तरह कि ये आपका मैग्नीशियम R जो है वो आकर इधर अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा. और जो रिमेनिंग MgX है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, MgX ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन मैग्नीशियम. सो ये स्ट्रक्चर अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो वो यहाँ बना हुआ है. जस्ट ये वाले R को इधर ऊपर यहाँ लिख दिया है और ऑक्सीजन और MgX को इन्होंने यहाँ राइट साइड पर बनाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर. ठीक, अब आपके पास जो है
सिंपल अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो आपके पास, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, कार्बन, इसके साथ आपके पास अल्काइल ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ से ये MgX रिमूव हो जाए और इसकी प्लेस पर हाइड्रोजन आ जाए तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवा रहे हैं, सो प्राइमरी अल्कोहल में हम अगर हम देखें तो कार्बन एटम विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू OH ग्रुप इज अटैच टू ओनली वन कार्बन डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ कार्बन सिर्फ एक ही डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन से, बाकी हाइड्रोजन के साथ है। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ी थी, ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स भी की जाती है। इंस्टेड ऑफ हैलोजन वहाँ जैसे OH ग्रुप आ जाते हैं। सो अब क्या होगा, हम इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बेसिकली इस कंपाउंड की, हम जो इंटरमीडिएट बनाए। तो हाइड्रोलिसिस में आपके पास OH और H बॉन्ड ब्रेक होगा और ये O और Mg बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप Mg को देखना है तो ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन यहाँ नेगेटिव है, वाटर में H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो Mg विल गो टू OH नेगेटिव एंड दिस H पॉजिटिव विल कम टू दिस ऑक्सीजन। सो आपके पास OH बन जाएगा यहाँ पर, और MgX जो ये था इसके साथ जो है वो OH आपके पास आ गया, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन देख रहे हैं विद द स्पेसिफिक अल्काइल हैलाइड व्हिच इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हियर। सेम वही रिएक्शन है आपके पास। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ग्रिग्नार्ड में हमेशा अल्काइल मैग्नीशियम वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के पास जो है वो आपके पास ये मोइटी आएगी, तो ये आ गई ऑक्सीजन के पास इधर, और CH इसके साथ दो है, तो ये CH2 जो है वो यहाँ ये लिखा हुआ, और इसके पास जो है वो CH3 आ रहा है, तो वो CH3 आपके पास ये है। अब सिंपल क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस में H एंड OH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा OMG। MgBr जो है वो आपके पास OH के साथ बॉन्ड बना के MgOHBr में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये H जो है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और आपके पास CH3 CH2OH बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो ये आपके पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है या फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, बिकॉज द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू OH ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली वन सिंगल कार्बन एटम। Using Grignard reagent, we can also prepare secondary alcohol, but the aldehyde which we will use here will be an aldehyde other than formaldehyde. So for the formation of secondary alcohol, any other aldehyde can be used other than formaldehyde. So general reaction देखते हैं, because formaldehyde में आपको मालूम है कार्बन के दोनों तरफ जो है वो हाइड्रोजन होता है। हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हमें कार्बन के साथ दो कार्बन के डायरेक्ट बॉन्ड्स चाहिए। सो इन दिस रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, या आपका अल्काइल हैलाइड, सॉरी या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ये आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड को यहाँ उन्होंने इस पिक्चर में थोड़ा सा रोटेट कर लिख दिया है। बेसिकली वही आपका कार्बोनाइल और उसके एक साइड पर हाइड्रोजन और एक साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है इस तरह। अगेन दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। R नेगेटिवली चार्ज है तो ये इस कार्बन के पास आ जाएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। सो Mg जो है वो आपके पास ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो MgX जो है वो ऑक्सीजन के पास आ गया और ये जो R था ये आपका कार्बन के पास आ गया, ये रहा। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H और OH वाटर, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला है और ये वाला बॉन्ड है। H OH के पास आ जाएगा, MgX OH के पास आ जाएगा, तो आपके पास ये OH बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। साथ में दो चीज़ बनेगी, वो होगी MgOH X। ये दीज आर केमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं।
Alkyl Grignard reagent which is used here is methyl magnesium chloride, and when it reacts with ethanol or acetaldehyde, ये जो aldehyde है specifically यहाँ जो R है वो CH3 है, तो ये ethanol या acetaldehyde कहलाता है. Acid is for presence of CH3 group here. So during reaction this bond will break and this pi bond will break. As a result ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी वेकेंट होगी और कार्बन के पास एक वैलेंसी वेकेंट होगी. कार्बन जो है वो पॉजिटिव है यहाँ एल्डिहाइड का, तो ये कार्बन इसके पास आ जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप इधर आ जाएगा और MgCl उठकर यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाएगा. ये रहा MgCl ऑक्सीजन के पास और ये CH3 ग्रुप इस कार्बन के साथ, जो कि कार्बोनाइल कार्बन था बेसिकली. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का. OH HOH बॉन्ड ब्रेक होगा. दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. H पॉजिटिव है, ये इस ऑक्सीजन के पास आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH जो है वो MgCl के पास आ जाएगा इस तरह, और यहाँ OH आ जाएगा. तो अगर आप यहाँ देखें तो द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप हियर इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स. तो ये 2 प्रोपेनॉल और 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल आपका. नाउ टर्शियरी अल्कोहल किस तरह बनेगा. टर्शियरी अल्कोहल आपके पास जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कीटोन्स के साथ होता है तो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है. So ketones are basically functional groups in which carbonyl carbon is attached to 2 alkyl groups. So ये आपके पास ketones कहलाते हैं. ठीक है, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये कीटोन बना हुआ है. कीटोन में अगेन ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल वाला, ये ब्रेक होगा. ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है. और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो वही विल रिमेन सेम, ये R और Mg वाला बॉन्ड. तो R इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये कार्बन के पास आएगा, और X जो है वो ये Mg पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास आएगा. इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो जाएगी और R आपका यहाँ आ गया. सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस स्टेप. दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक एंड दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक. As a result, this H will come to this oxygen, this MgX will go to this OH. So MgOH इस तरह से फॉर्म हो जाएगा और यहाँ इस ऑक्सीजन के पास कौन आ गया H. तो the carbon atom is directly attached to OH group is directly attached to 3 carbon atoms, so they are termed as tertiary alcohols. Specific reaction देख लेते हैं इसका. हम यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड द कीटोन विच इज़ यूज्ड हियर इज एसीटोन. बोथ साइड जो R है वो आपके पास एसिड CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको एसीटोन कह रहे हैं. और इसका आयोपिक नेम है 2-प्रोपेनॉन. सो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, अगेन दिस पाई बॉन्ड विल गेट ब्रेक, दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक, ये OH और Mg बॉन्ड बन जाएगा, ये CH3 और C पॉजिटिव बॉन्ड बनकर ये CH3 आपके पास ये आ गया ये वाला, और MgI ऑक्सीजन के पास आ गया. ये ऑक्सीजन ये वाला था, उसको जस्ट थोड़ा सा रोटेट करके लिख दिया है रिस्ट्रक्चर को. नेक्स्ट स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इंटरमीडिएट. ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा. H ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और MgI OH के साथ रिएक्ट करके ये मोइटी बना लेगा. सो द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप हियर इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स. सो ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल बन गया. और स्पेसिफिकली जो ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म हुआ इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन 2O. अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इसका नाम ये है. सो अल्कोहल्स तीनों टाइप के आपने देख लिया किस तरह प्रिपेयर होते हैं. अब हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स. Whenever Grignard reagent reacts with carbon dioxide, the product which is obtained is carboxylic acid. So ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लीनियर सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, C double bond O, C double bond O. अगेन
क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और RMgx में RMg बॉन्ड ब्रेक होता है। तो R पार्शियल नेगेटिव है, Mg पार्शियल पॉजिटिव है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। सो जो नेगेटिवली चार्ज R है वो आकर अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और जो Mgx मोइटी है वो ऑक्सीजन के पास चली जाएगी। तो आपके पास इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा, RCO2MgX, RCO2MgX। अगेन आपके पास जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी, और फिर जो आपके पास बॉन्ड है, कुछ बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, और जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस तरीके से आपके पास बेसिकली यहाँ एडिशन अगेन प्रोटॉन H पॉजिटिव की होगी, और OH और MgX का बॉन्ड बनेगा, और वो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं इसका। यहाँ इट इज क्लियर एंड ओपन रिएक्शन है, तो इसलिए यहाँ ये क्लियर होगा। अगेन वही चीज़ के कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, और RMgX यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आपका, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी, कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी, और आपके पास ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है इंटैक्ट, ये वाला बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के पास जो है वो आपके पास Mgi आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन और Mgi, और ये जो CH3 है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो इस कार्बन के साथ जिसका डबल बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन से, CH3 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास आएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये I के साथ OH के पास जाकर MgOHI ये बना लेगा, और यहाँ आपके पास अब जो है वो H आ गया, तो ये इथेनोइक एसिड बन गया है, यानी कि इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन है इसलिए हमने H यूज किया है। बेसिकली ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है इथेनोइक एसिड CH3COOH, it is basically the iupac name of vinegar और एसिडिक एसिड। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपके पास इसी तरह पूछा जाता है कि हाउ स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाउ विल यू प्रिपेयर विनेगर। सो वो इस तरीके से आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाकर बना सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके साथ स्टडी करेंगे। अंटिल देन कुछ मिनट्स हैं हमारे पास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। थैंक यू।